Hello everyone. Today we will study the chapter 2 relation and function. We should know before the relation and function, we should know about the first point is order pair. What is the order pair? If A is an arbitrary element from set A and small b is an arbitrary element from set B, then the pair AB is called an order pair. This type of you have to write the small a and small b in this bracket, and this bracket is known as the ordered pair, where a small a is the element of capital A and small b is the element of capital B. Two order pair x and y are equal if and only if the corresponding first and second elements are equal. It means कि दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे. फॉर एग्जाम्पल कि लेट ए एंड बी द इज इक्वल टू 5, 6, therefore a is equal to 5 and b is equal to 6. So by this way we can find the value of the a and b. If two order pair are equal, then the corresponding elements are equal. Next point, Cartesian product of the sets. Cartesian product of the set. Suppose there are the two non-empty sets A and B. So the Cartesian product of A and B is the set of all order pair of the elements from A and B and is denoted by A cross B. This is known as A cross B. AB, you have to write the in the small bracket AB, where small a is the element of A and small b is the element of B. For example, if you want to find the A cross B, so let A be the a set in which the two element 1 and 2 is given, and set B be the other set in which the three element A, B, C is given. So how will you find the A cross B? A cross B means you have to write the element of A cross and element of B. So if you are taking the A cross B, so A cross B, that is A cross B means you have to write the element of A cross element of B, that is A, B, C. Or if you are taking the A cross, finding the A cross B, then you have to write the 1A, 1B and 1C, 1A, 1B and 1C. Similarly, 2A, 2B, 2C, 2A, 2B and 2C. तो A क्रॉस B के ये एलिमेंट 1A, 1B, 1C, 2A, 2B एंड 2C. इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे जो है, जिसको हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट A क्रॉस B बोलते हैं. यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है. A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस मच. इफ़ यू वांट टू फाइंड द B क्रॉस A, तो B क्रॉस A, इफ़ यू आर गेटिंग द A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, अदरवाइज एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा. तो एलिमेंट का अगर ऑर्डर चेंज, अगर हम B क्रॉस A फाइंड करते हैं तो B क्रॉस A फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट A इज इक्वल टू 1, 2 इज गिवन and B is equal to ABC is given. So ABC is given. So B cross A is equal to, means you have to write the element of B, ABC cross 1, 2. B cross A, that is you have to write the A1, A2, B1, B2, C1, C1 and C2. So these are the 6 element A1, A2, B1, B2, C1, C2. जबकि A क्रॉस B में एलिमेंट A1 आया था, 1A, 1B, 1C आया था और 2A, 2B, 2C आया था. और इस तरह से हम B क्रॉस A में देख रहे हैं कि
A1 A2 B1, तो ये therefore A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो इट मीन्स कि हम A क्रॉस B अगर फाइंड करते हैं तो A के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, और B क्रॉस A फाइंड करते हैं तो B के एलिमेंट पहले लिखेंगे, फिर A के एलिमेंट लिखेंगे। If A has m elements and B has n elements, then A cross B have m into n एलिमेंट। मतलब कि जो है m A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि A में 2 एलिमेंट है और B में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, और 1A 1B 1C is also known as the ordered pair. This is the order pair. Next point is relation. रिलेशन सिंपली वही रिलेशन है जैसे फादर का सन का रिलेशन, फादर और सन का रिलेशन, मदर और डॉटर का रिलेशन, टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन। तो सेम थिंग है, बट यहाँ पे एक रियल नंबर के फॉर्म में होगा या नंबर के फॉर्म में होगा। तो हमें सबसे पहले रिलेशन फाइंड करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट को जैसा भी हमने समझा, तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन क्या है, कि रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब कि रिलेशन R इज़ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, वेयर A एंड B आर द टू नॉन एम्पटी एलिमेंट्स। ठीक है, इट्स डिराइव्ड बाय द स्टेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट and the second element of the order pair of A cross B. The set of all the first element of the order pair is called the domain of R, and the set of second element of the order pair is called the range of R. इस तरह से सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, A क्रॉस B का जो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B के सब एलिमेंट या कुछ एलिमेंट रिलेशन में आएंगे, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब नंबर ऑफ और A क्रॉस B के जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे, और जो रिलेशन का सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज के एलिमेंट कहलाएंगे। नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने रिलेशन हो सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला के थ्रू समझते हैं, 2m इंटू n, 2m इंटू n, यानी कि इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ रिलेशन बनेंगे। नंबर ऑफ़ रिलेशन, तो जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इसके लिए रिलेशन बनाते हैं तो 2 पावर 6 बनेगा, 2 पावर 6, वेयर A एंड B आर दी टू फाइनाइट सेट, A हैज़ m एलिमेंट एंड B हैज़ n एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 पावर mn। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लेट A इक्वल टू ABCD एंड B इक्वल टू PQRS। तो रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है A से P फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ, B का R के साथ, और C का S के साथ। तो ये दिस इज द रिलेशन AP, AQ, BR एंड CS। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के ही एलिमेंट होंगे जो रिलेशन में एलिमेंट पाए जा रहे हैं। तो देयरफॉर अब अगर हम इसको वेरिएंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट डोमेन क्या है, डोमेन सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R। तो सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे, और रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि A B C, यहाँ पे A B C डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इन R मतलब रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन। यहाँ A रिपीट हो रहा है, उसको हम एक ही बार लिखते हैं क्योंकि सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंज सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इन R। तो सेट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो होगा PQRS, यानी PQRS, दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, सो इट इज़ नोन एज द रेंज।
रेंज जो होगा सेकंड एलिमेंट, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। कोडोमेन, कोडोमेन सेकंड सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन, सेकंड सेट बी इज कॉल्ड, दिस इज द कोडोमेन, दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द कोडोमेन। बट डोमेन में हम ऐसे एलिमेंट को लेके चलते हैं जिसका जो है रिलेशन बनता है, और कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट दिए हैं सब कोडोमेन कहलाएंगे। तो इस तरह से कोडोमेन में क्या आएगा, पी क्यू आर एस। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन। फंक्शन एक स्पेशल टाइप्स का रिलेशन ही है जिसको हम कहते हैं अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन if every element of set A has one and only image in set B. It is denoted by F from A to B. F from A to B. F from A to B. अब F from A to B means कि हमें A के एलिमेंट का जो इनपुट होगा वो B में आउटपुट देखना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एक एलिमेंट का जो सेट बी होगा उसमें आउटपुट देखेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। तो डोमेन ये जो रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द डोमेन, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द कोडोमेन, कोडोमेन। और रेंज के लिए हम ये देखते हैं कि आउटपुट डोमेन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो आउटपुट मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ इज ए रिलेशन सच दैट नो टू पॉइंट्स इन द रिलेशन हैव द फर्स्ट एलिमेंट। एक तो ये दे रखा है कि इसके एलिमेंट फंक्शन में क्या होगा कि फंक्शन में हम एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट का 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को डिफाइंड है। तो एफ फ्रॉम ए टू बी, जो एक एफ फ्रॉम ए टू बी इस तरह से दिया है। 1 का इमेज 5 के साथ बन रहा है, 2 का इमेज 6 के साथ बन रहा है, 3 का इमेज 7 के साथ बन रहा है और 4 का इमेज 8 के साथ बन रहा है। तो इस तरह से अगर डिफाइंड है फंक्शन तो हम कहेंगे कि जो है इसका डोमेन कितना होगा, 1 2 3 4 होगा, और रेंज कितना होगा कि हमने कहा कि इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट देखना हमें, इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा, अरे आउटपुट क्या मिल रहा, 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन ये कहलाएगा। अब दूसरा क्या है कि फंक्शन होने के लिए इसके सभी एलिमेंट का एक इमेज मिलना चाहिए इसमें। अगर ऐसा मिलता है तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 7 है, 3 का इमेज 8 है, 4 का इमेज 9 है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 का कोई इमेज नहीं मिल रहा है। तो अगर 5 का कोई एलिमेंट यहाँ पे एक एलिमेंट छूट रहा है, अगर एक एलिमेंट छूट रहा है तो इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। डोमेन में कोई भी एलिमेंट जो सेट ए है उस सेट ए और बी अगर हम फंक्शन के थ्रू दिखाते हैं कि यह फ्रॉम ए टू बी है, तो इस ए में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए कि जिसका इमेज ना बनना हो। अगर कोई इमेज छूटता है तो फंक्शन नहीं है। तो दिस इज नॉट द फंक्शन। सिंस 5 हैज नो इमेज इन बी, देयरफॉर दिस इज नॉट फंक्शन, दिस इज नॉट फंक्शन। एंड थर्ड थिंग कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, किसी तरह से ये डिफाइंड है, 1 का 5, 2 का 5, 3 का 6 और 4 का 6। तो दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है।
दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। बट इस तरह से डिफाइंड है कि 1 2 3 4 5 4, 1 का इमेज 4 से बन रहा है और 1 का इमेज भी 5 से बन रहा है, 2 का 6 से बन रहा है, 3 का 7 से बन रहा है। तो 4 और 5 का जो प्री इमेज है सेम है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए हमको यहाँ 11th में सिर्फ इतना ही देखना है, फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन देखने के लिए हमें ये देखना है कि जिस सेट का जो इनपुट सेट है उस इनपुट सेट में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आउटपुट सेट में कोई इमेज ना बन रहा हो, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एलिमेंट छूटता है तो फंक्शन नहीं है। और दूसरा क्या है कि इसमें जो आउटपुट सेट है, आउटपुट सेट में आउटपुट सेट के किसी भी एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम प्री इमेज नहीं होना चाहिए। जब इसमें देखेंगे इस सेट ए में तो हम कहेंगे प्री इमेज, और बी में देखेंगे तो कहेंगे इमेज। तो किसी भी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का इमेज 4 बन रहा है और 1 का इमेज 5 बन रहा है, इस तरफ 4 और 5 का इमेज प्री इमेज 1 है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, a function f from a to b is called a real valued function if b is a subset of r, subset of r, if subset of r, subset of मतलब set of all real number, set of real number. If a and b both are the subset of r, then f is called a real function. Real function, some specific type of the function. Next point is identity function. आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन या फ्रॉम आर टू आर, फ्रॉम आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, या एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया है, 3x दिया, 4x दिया है, तो इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इस तरह के फंक्शन का अगर हम डोमेन फाइंड करते हैं तो रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। डोमेन मीन्स कि हम एक्स की डोमेन देखने के लिए हम एक्स की वैल्यू देखते हैं और रेंज देखने के लिए हम वाई देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, जिसको हम एफ एक्स को वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, इज इक्वल टू एक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 1 तो वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 तो वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4 तो वाई इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कि जो इनपुट है वो एक रियल नंबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी जो एक रियल नंबर ही आ रहा है। इट मीन्स कि डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा, जिसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इस तरह से आएगा। ठीक है कि 1 पे दिया 1 2 3 इस तरह से ले लिया, 1 2 3 इस तरह से 1 2 3, तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा, लाइन होगी, वो कहाँ से पास होगी, एक वर्जिन से पास हो रही है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसके लिए डोमेन कैसा होगा, रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, रियल नंबर। तो फंक्शन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, द फंक्शन या फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, वेयर सी इज ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट इज द एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट फंक्शन। मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है जैसे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 3, अब कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 दिया है, तो इट मीन्स कि अगर हम x की वैल्यू जितनी भी चेंज करते हैं, x की वैल्यू अगर हम ग्राफ करते हैं x के लिए, तो x के लिए 0, तो अगर हम x 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट, जो इनपुट एलिमेंट हैं, जो इनपुट नंबर हैं, वो 0 1 2 3 कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसका डोमेन क्या बन गया, रियल नंबर,
और अगर हम रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज में हम देखते हैं एक कांस्टेंट नंबर बना हुआ 3, मतलब इस जितने भी नंबर हैं सबके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट नंबर वो 3 आ रहा है। तो इट मीन्स एक कांस्टेंट है, जो 3 एक कांस्टेंट है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बहुत से नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसका अगर हम रेंज फाइंड करते हैं तो रेंज हमारा क्या आएगा, रेंज हमारा एक कांस्टेंट ही आएगा। रेंज ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट दिया है वो उसके इक्वल आएगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन का अगर हम रेंज निकालते हैं तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट फंक्शन है तो उसके लिए जो है डोमेन कैसा होगा, रियल नंबर, और जो है रेंज कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये हम देखते हैं कि फंक्शन किस से किस पे डिफाइंड है। अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है तो रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू क्या आ रहा, 3 ही लिया जा रहा है, 3 ही आ रहा है। तो जो इनपुट नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रेंज। आउटपुट नंबर ही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड बाय इतना f(x) इक्वल टू a0 इतना इतना इतना, वेयर इतना इतना इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। मतलब इस तरह का अगर फंक्शन कोई दिया है तो इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे दे दिया गया f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, तो दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, these are the real function of the types f(x) upon gx, where f(x) and gx are polynomial function of x and defined in a domain where gx is not equal to 0। मतलब कोई फंक्शन अगर f(x) में gx के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन होना चाहिए, where gx is not equal to 0, gx is not equal to 0। जैसे एक एग्जाम्पल y इक्वल टू f(x) है, अगर ये फंक्शन 1/x के फॉर्म में ले लिया तो दिस इज द रेशनल फंक्शन। और अगर हम इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं तो जो ये फंक्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हो, उसके अकॉर्डिंग हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। नेक्स्ट आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, द रियल फंक्शन या फ्रॉम आर टू डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉडुलस फंक्शन उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको हम बोलते हैं मॉड। दिस इज द मॉड बोलते हैं। अगर -5 है तब भी इसकी वैल्यू 5 होगी, और अगर 5 है मॉड में 5 तब भी इसकी 5 ही होगी। तो इस तरह से कोई जो है मॉड के फॉर्म में दिया हुआ कोई फंक्शन तो उसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस तरह से आएगा कि वो x इज लेस देन 0 तो f(x) इक्वल टू -x होगा, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो इसके लिए x आएगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एलिमेंट ऑफ r इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन जो आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। निगेटिव हो नहीं सकता है क्योंकि जो मॉड में निगेटिव है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही है। तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में होगा। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे x के अलावा कौन सा दिया हुआ है, कौन सा नंबर दिया है, कौन सा वेरिएबल दिया है, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी और क्या रेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का ही डिराइव्ड है। तो अगर हम सिग्नम फंक्शन लेते हैं तो सिग्नम फंक्शन कि द रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू डिफाइंड बाई इतना एंड इतना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फंक्शन दिया है इतना कि मॉड ऑफ x बाई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फॉलो करेगा। और अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिख दें कि x इज लेस देन 0 अगर लेके चलते हैं तो x इज लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1। x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, x इज लेस देन 0 तो यानी कि -1 अपॉन 1 इट मीन्स 1। जब x की वैल्यू -1 होगी तो इसकी वैल्यू यहाँ पे
-1 है, -1। अब ये निकलेगा बाहर तो 1 होगा, और 1/-1 दैट इज़ -1। तो इस तरह से -1 बनेगा। और x इक्वल टू 0, अगर 0 है तो 0 ही हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि अगर x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। मान लो हमने 2 पुट किया तो 2/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 3/3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से x लेस देन 0 के लिए -1, x इक्वल टू 0 के लिए 0, और x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होगा। और इसके लिए अगर हम ये देखें तो इस कॉल्ड दिस सिग्नम फंक्शन, मतलब कि अलग अलग डिफाइंड है, जबकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए एक ही डिफाइंड फंक्शन x ही डिफाइंड है। और यहाँ पे देख रहे हैं हम कि लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन है, इक्वल टू 0 के लिए एक अलग फंक्शन है, और ग्रेटर देन 0 के लिए एक अलग फंक्शन है। तो ये इस तरह के फंक्शन जब अलग अलग डिफाइंड होता है कोई फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, जिसके लिए डोमेन कैसा होगा, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियल नंबर के हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो हमारा इनपुट नंबर होगा वो कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज क्या होगा, जो -101, मतलब हमारा जो आउटपुट नंबर लिया गया, जो आउटपुट आएगा कि अगर हम लेस देन 0 लेके नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है, तो 0 इस तरफ से, और यहाँ पे अगर x की लेस देन 0 इस तरफ चलते हैं तो इधर नेगेटिव वैल्यू आएगी, -1 -2, इधर पॉजिटिव वैल्यू 1 2, इस तरह से। तो इस तरफ भी चलते हैं तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, यहाँ पे जो है इस है जितना चला तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 1 ही। और इस तरफ अगर चलते हैं तो इसकी वैल्यू है -1 है। तो इस तरह से, और x इक्वल टू 0 पे 0 है। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो आउटपुट नंबर है वो सिर्फ -101 है। देयरफॉर रेंज क्या होगा, -1, 0, 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द रियल फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू दिस टाइप ब्रैकेट, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस ब्रैकेट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे बिग ब्रैकेट ही आएगा, कोई दूसरा ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। अगर बिग ब्रैकेट रहेगा तो इट मीन्स कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। x इज द एलिमेंट ऑफ r, एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू x इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका लिए डोमेन अगर हम निकालते हैं तो रियल नंबर होगा, और रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वो एक इंटीजर होगा। अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दे दिया गया 5.67, तो 5 इसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे कि क्या दे रखा है, x एज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू, तो या तो लेस होगा या तो उस x के इक्वल होगा। तो 5.67 एक इंटीजर है नहीं, तो यानी हमें लेस इंटीजर लेके चलना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन अगर ये 5 दे रखा, ऑलरेडी 5 दे रहा है, तो 5 एक इंटीजर है, तो ये इसकी वैल्यू भी 5 ही होगी। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर यहाँ इंटीजर के अलावा कोई भी नंबर दिया है तो उससे में लेस इंटीजर लेके चलना है, और अगर ऑलरेडी इंटीजर दे रखा है तो वही इंटीजर हो जाएगा। तो ये इसलिए जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट आता है अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन, एडिशन ऑफ टू रियल नंबर फंक्शन, मीन्स कि हमें दो फंक्शन को ऐड करना है, तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं कि दो फंक्शन f(x) और g(x) है, और उसको हम सिंपली जो f(x) की वैल्यू और g(x) की वैल्यू जो भी दी है उसको हम ऐड कर दें। मान लो f(x) इक्वल टू दिया है x² और g(x) इक्वल टू दिया है 2x², तो इट मीन्स अगर हम f(x) प्लस g(x) निकालते हैं तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू x² और प्लस 2x² ऐड कर देंगे, 3x² हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द रियल नंबर f(x) माइनस g(x) से हम ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एंड क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन, और हम ऐसे ही डिवाइड भी कर सकते हैं, बट g(x) नॉट इक्वल टू